بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف ایف ڈی اے ان ایکشن 7 ہاؤسنگ اسکیموں کے تعمیراتی ڈھانچے مسمار کر دیے گئے، دفاتر سیل کر دیے گئے۔ النور ویلی چک 100 کی اضافی آبادی، بھولے وال ٹاؤن اور یونیورسل ٹاؤن سمیت دیگر شامل ہیں۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز میں یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ضلع بھر میں غیر قانونی کالونیوں کا سلسلہ ابھی بھی نہیں تھم رہا اور جو ڈیولپرز ہیں ان کی جانب سے جو ہاؤسنگ بائی لاز ہیں اور پیری اربن پلان تھا اس کی خلاف ورزی جاری ہے۔ اس حوالے سے ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیموں نے پھر کارروائی کرتے ہوئے 7 کالونیوں کے دفاتر سربے مہر کیے ہیں اور وہاں پر جاری ترقیاتی کام روکتے ہوئے جو غیر قانونی طور پر تعمیرات کی گئی تھیں ان کو بھی جو ہے وہ مسمار کیا ہے۔ اس حوالے سے ایف ڈی اے کی جانب سے نہ صرف ان کالونیوں کے جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس کو روک دیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی متعلقہ محکمے جن میں سوئی ناردرن گیس ہے، فیسکو ہے، واسا ہے، پی ٹی سی ایل ہے، ان کو بھی سروسز نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کہیں پر بھی غیر قانونی طور پر کالونیاں جو ہے وہ نہ بنیں اور ہاؤسنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ڈی ایچ کیو اسپتال میں کرپشن کا انکشاف ہوا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کی مد میں رقم جمع خزانے میں نہ کروائی جا سکی۔ اسپتال انتظامیہ نے انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹس کی مد میں جمع رقم خزانے میں جمع نہ کروائی جا سکی۔ اسی پر مزید بات کریں گے عزدار حسین سے۔ جی عزدار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ میڈیکل فٹنس کے حوالے سے جو فیس وصول کی جا رہی تھی تو ایسے میں محکمہ ڈی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ کی طرف سے انکوائری لگا دی گئی ہے، جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کی مد میں فیس وصول کی جا رہی تھی تو حکومتی خزانے میں جمع نہیں کروائی جا رہی تھی۔ ہمارے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر آصف احمد سلیمی صاحب موجود ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے، کو پتہ چلا کتنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہمارے سینٹری انسپیکٹر نے نوٹس میں دیا تھا کہ کچھ جو رسیدیں ہوتی ہیں نا سرکاری طور پہ جب وہ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، گورنمنٹ نے رپورٹ کیا کہ کچھ وہ جو آئی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، وہ رسیدیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع نہیں کروا رہے، تو وہ ہم نے اس کی ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے تو پھر اس کا پتہ چلے۔ دورانیہ پتہ ہے کہ اتنے سے لے کر اتنے تک کے جو ہے پیسے جمع نہیں کرائے گئے، 2 ماہ کے، 6 ماہ کے یا 2 سال کے، اور اس کے علاوہ تقریباً روزانہ کتنے ایک جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہیں وہ فٹنس کے حوالے سے وہ جاری کیا جاتا ہے اور کتنے کے فیس؟ نہیں، وہ ابھی ساری چیزیں بھی انکوائری میں واضح ہوں گی کہ کتنی اماؤنٹ ہے، کتنی وہ رسیدیں انہوں نے جمع نہیں کرائی، وہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہوگا تو پھر ہی سب پتہ چلے گا اس کا۔ ابھی بالکل معاملے کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور اس بہت کے شکریہ بعد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے باہمت بزرگ پروگرام کے تحت 65 سال کی عمر والے افراد کو ماہانہ 2000 روپے ملنے والے فنڈز پر بھی کٹ لگا دیا۔ نئے سال مالی سال کے سالانہ بجٹ میں 1.2 ارب روپے کا فنڈ کم کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے علی رامے سے۔ جی علی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ایک سماجی تحفظ پروگرام ہے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ہی شروع کیا تھا اور اس پر وزیر اعظم پاکستان کے واضح احکامات ہیں، اور اس پروگرام کے تحت ہی باہمت بزرگ پروگرام میں جتنے بھی بزرگ جو 65 سال سے زائد کی ان کی عمر ہے تو ان کو 2000 روپے ماہانہ وظیفہ حکومت پنجاب کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور یہ وفاق کی طرف سے بھی پروگرام شروع کیا گیا اور اس پر پنجاب حکومت نے بھی اس پروگرام کو شروع کیا۔ اب اس پروگرام میں 1.20 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے نئے مالی سال میں کم کر دیا، اور اس کے بجٹ دستاویزات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں مالی سال 2020-21 میں یہی رقم 3.60 ارب روپے مختص کی گئی، جبکہ نئے مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں یہ رقم 2.64 ارب روپے یعنی کہ 2.40 ارب روپے مختص کی گئی۔ اب اس میں 1.20 ارب کا واضح فرق آ رہا ہے جو کہ پنجاب حکومت نے اس میں کمی کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو 65 سال سے زائد بزرگ افراد ہیں ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو ان کو یہ پیسے دیے جائیں گے، اور یہ بینک کے تھرو کارڈ کے ذریعے یہ پیسے حکومت پنجاب ان کو فراہم کر رہی ہے، لیکن نئے مالی سال میں یہ بجٹ حکومت پنجاب نے کم کیا۔ اب اس کی وجوہات جاننے کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب اور پی این ڈی بورڈ کے حکام سے بھی موقف لیا گیا کہ بتایا جائے کہ آیا یہ بجٹ کم کیوں کیا گیا، تو اس پر
तमाम दोनों अदारे जो हैं वो अभी तक खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जो बजट दस्तावेज़ात हैं उसके सामने कि उसमें 1 अरब 20 करोड़ रुपए की कमी पंजाब हुकूमत ने की, जो कि एक बुजुर्गों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम था और हुकूमत माहाना 2000 रुपये का वजीफ़ा उनको देती थी। और उस बजट में भी 1 अरब 20 करोड़ रुपए का हुकूमत पंजाब ने कट लगा दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत 65 साल के उम्र वाले अफराद को माहाना 2000 रुपये मिलने वाले फंड्स पर कट लगा दिया। नए माली साल के सालाना बजट में 1 अरब आशारिया 2 अरब रुपए का फंड कम कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि स्कूल्स में दाखिला बढ़ने की बजाय कम होने लगा। फैसलाबाद के 53 स्कूल्स में दाखिला बढ़ने की बजाय कम। गवर्नमेंट हाई स्कूल मलिकपुर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नूरपुर में तलबा का ड्रॉप आउट। इसी पर बात करेंगे। आपको बताएं कि स्कूल्स में दाखिला बढ़ने की बजाय कम होने लगा। फैसलाबाद के 53 स्कूल्स में दाखिला बढ़ने के बजाय कम। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से कोविड के असरात से निपटने के लिए जो दाखिला कम हुआ था उसको बढ़ाने के लिए फरवरी में दाखिला मुहिम कैंपेन चलाई गई थी और तमाम स्कूल सरबराहान को कहा गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वापस स्कूल में लेकर आएँ और जो तादाद कम हुई है उसको बढ़ाएं। लेकिन फैसलाबाद के अक्सर जो सरबराहान इदारा हैं उनकी तरफ से जो महकमा तालीम की काविशें हैं उनको पानी में डुबो दिया गया है, क्योंकि फैसलाबाद की जो दाखिला टारगेट है वो नाकाम हो रहा है कुछ स्कूल्स की वजह से। फैसलाबाद की जो रिपोर्ट मरतब की गई उसके मुताबिक 53 स्कूल ऐसे हैं जहां पर दाखिला बढ़ाना तो दूर, वहां पर पहले जो तादाद थी वो भी मेंटेन नहीं रखी गई और वहां पर दाखिला जो है वो पहले से भी कम हो गया। ड्रॉप आउट के हवाले से तमाम जो 53 स्कूल सरबराहान हैं उनको डीओ सेकेंडरी ऑफिस की तरफ से शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 5 जुलाई को इन पर्सन तमाम जो सरबराहान इदारा हैं वो हाजिर होंगे और अपनी वजाहत पेश करेंगे कि क्यों उनकी तादाद कम हुई है। अगर वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो पीडा एक्ट के तहत पुअर परफॉर्मेंस के हवाले से उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और महकमाना सजाएं जो हैं उनका भी तयन किया जाएगा। इस हवाले से सीओ अहमद की तरफ से तमाम सरबराहान को वार्न किया गया है कि वो अपना दाखिला जो है उसको बढ़ाने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाएं, स्कूल काउंसिल को, पेरेंट्स को मुतहरिक करें और इसके अलावा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घंटाघर के 8 बाजारों में लोड शेडिंग, ताजिर परेशान, कहते हैं गर्मी में कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फेस्को की डिमांड भी बढ़ चुकी है और फैसलाबाद के घंटाघर की मार्केटों में लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी हो गया है, जिसके बाद फैसलाबाद का जो कारोबारी तबका है उनकी जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि गर्मी के अंदर कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, क्या कहते हैं? गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली गायब होने का सिलसिला जारी है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारी अंदरून मार्केट में दुकानें हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पर हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कारोबार करते हैं, मगर क्या है कि ये इन 10-11 घंटों में हमें 5 घंटे बिजली मिलती है और 6 घंटे बिजली होती नहीं है, तो बिजली का शेड्यूल भी कोई नहीं है, अनशेड्यूल लोड शेडिंग हो रही है। इस हवाले से हुकूमत मेरे ख्याल से किसी किस्म का इकदामात करने में नाकाम हो चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे फैक्ट्रियां ये हुकूमत चलाना चाह रही है, सारा कुछ उनको रिलीफ भी दे रही है, सारा कुछ दे रही है, तो इधर बिजली नहीं है, बिजली का शॉर्टफॉल है और उधर फैक्ट्रियां लगाएंगे तो मज़ीद शॉर्टफॉल आएगा। इनको चाहिए कि ऐसे इकदामात करें ताकि बिजली हमारी पूरी हो सके। बिजली पूरी हो सके इस हवाले से इकदामात उठाए जाएँ। और भी ताजर यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा क्या परेशानी है बिजली बंद होने की? जी इसकी वजह से ना हम काम कर सकते हैं, गर्मी से बुरा हाल होता है और दूसरे नंबर के ऊपर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई एक्शन ले, अब नोटिस ना ले। उन्होंने जब से नोटिस लिया है इसका, ये फिर गायब हो गई। जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। जी बिल्कुल, नोटिस ना लिया जाए और एक्शन लिया जाए इस हवाले से जो कारोबारी तबका है उनको रिलीफ तो दिया जाता है, मगर वो कारोबार कैसे करें बगैर बिजली के? गर्मी के अंदर कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, इसलिए जो शॉर्टफॉल है बिजली का उसको दूर किया जाए और आसानी से कारोबार करने के लिए ताजरों के लिए बिजली से फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब रुक करेंगे चिन्योट का। तो चिन्योट में फेस्को दिया गया शेड्यूल भूल गई। शहरों में 2 घंटों की बजाय वक्फे से आंख मचोली जारी है।
इसी पर मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट शहर के लोग लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं। फेस्को की जानिब से चिन्योट के लिए लोड शेडिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया था उससे हट के लोड शेडिंग हो रही है। शहरी इलाकों में 2 घंटे जबकि देहाती इलाकों में 7 घंटे लोड शेडिंग का कहा गया था, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपके इलाके में कितनी बिजली बंद हो रही है और जो शेड्यूल से हट के हो रही है? जी बिल्कुल, शेड्यूल से हट के हो रही है। तकरीबन 6 से 8 घंटा जो है ना इसका दौरानिया है। आधा घंटा बिजली आती है तो 1.5 घंटा बंद रहती है। रात को भी बड़ा मसला बनता है, गर्मी में बच्चे सोते नहीं हैं, और दिन को जो है वो उसका भी लोड शेडिंग वही बरकरार इनका दौरानिया है। 2 घंटे की बजाय 6 से 8 घंटे कर रहे हैं, और फसलें जो है वो उनको भी पानी वगैरह मुहैया नहीं हो रहा, ना ही कोई ट्यूबवेल वगैरह चल रहे हैं। अगर आधा घंटा चलता है ट्यूबवेल तो वो थोड़ा सा रकबा है उसमें खराब होता है, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है इनके साथ। आप भी लोड शेडिंग से परेशान हैं? कितने घंटे बिजली बंद हो रही है? 7-8 घंटे बंद हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी की वजह से हम भी लोग बहुत परेशान हैं। घर से बाहर निकले, घर से बाहर आगे गर्मी लोग बहुत लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप शहर में रहते हैं या देहात में? शहर में रहते हैं जी, बहुत लोड शेडिंग हो रही है। कितने घंटे हो रही है? 8 घंटे हो रही है सर। 2 घंटे का उन्होंने कहा था। हाँ, 2 घंटे का कहा था, अभी 8 घंटे कर रहे हैं, तो बहुत परेशान है। आपके पास कितनी लोड शेडिंग हो रही है? हमारे पास भी 2 घंटे तकरीबन हो रही है, आधा घंटा आती है फिर घंटा चले जाती है, इसी तरह का शेड्यूल ही है। जी बिल्कुल, शेड्यूल ये था कि सुबह 11:30 से 12 बजे तक 12:30 तक बिजली बंद होगी, उसके बाद शाम 5:30। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे फलों के बादशाह आम की हर जगह धूम है। जी सुनते अगर आप बताएं आपको आम कितने पसंद हैं? साथ ही मुझे भी आम बहुत ज्यादा पसंद है। तो जंग के बाजारों में हरे और पीले आमों की बहार। विजडम स्कूल में बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ अपने पसंदीदा आम खाकर मैंगो डे मनाया। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। के बाजारों में पीले और सब्ज आमों की बहार दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि इस गर्मी के मौसम में हर शख्स की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि वो आम जो फलों के सरदार आम को खाकर इस गर्मी से खासा लुत्फ अंदोज़ भी हो। झंग के विजडम स्कूल में भी आज बच्चों की जानिब से मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया। अब बच्चे इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, खासे मज़े से यहाँ पर जो है वो आम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों की इस मैंगो पार्टी के हवाले से स्कूल इंतज़ामिया ने जो है वो बच्चों को आम भी जो है वो फराहम किए, ताकि बच्चे जो है वो यहाँ पर जो आम खाकर जो है वो गर्मी से भी लुत्फ अंदोज़ हों और आम के साथ खूब 2-2 हाथ जो है वो साफ़ करें। इसी वाले से बच्चों से बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर मैंगो पार्टी में मौजूद हो, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आज गर्मी का दिन है, इसलिए सब मैंगो खाते हैं। वैसे भी गर्मी में जब होते हैं शदीद गर्मी, सब मैंगो खाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं गर्मी के लिए। यहाँ सब मैंगो खा रहे हैं, बहुत अच्छे टेस्टी हैं, सब फ्रेश खा रहे हैं। यहाँ तालीम भी अच्छी है, मैनर सब अच्छे सिखाते हैं। स्कूल में टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, तालीम सिखाती हैं, ख़ासतौर पर बड़ी मैम। बिल्कुल, बड़े हो या बच्चे, हर किसी की जो है वो आम पसंदीदा फल है, और ये बच्चों का ये कहना था कि आज जो स्कूल इंतजामिया की जानिब से इस किस्म की एक्टिविटी करवाई गई है, इससे वो खासे खुश हैं। बिलाशुबा ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियां। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत की जानिब से DLTL अदा करने पर सनतकार खुश। बरामदात को 25 अरब से बुलंद सतह पर ले जाने का क्रेडिट टेक्सटाइल सेक्टर के सर। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी बरामदात 25 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर गई, एक बड़ा फिगर है। तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मशीर कॉमर्स से एक अच्छा माइलस्टोन कह रहे हैं। आने वाले साल में मजीद बेहतरी आएगी, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो DLTL की शक्ल में भी गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा जो है DLTL वो रिलीज़ किया गया। सैयद ज़िया आलमदार हमारे साथ मौजूद, साबिक सदर चैम्बर हैं। सैयद साहब, कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी एक खबर है कि हमने एक अचीव भी किया और साथ रिलीफ जो है वो भी मिला है। मैं समझता हूँ जी कि ये जो 8 बिलियन डॉलर है, ये एक थपकी की सूरत है, और उन्होंने हमें एक एप्रिसिएशन के लिए 8 बिलियन डॉलर दिया है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम अप्रैल में उनके पास गए थे, तरीन साहब के पास, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको 10 बिलियन डॉलर इमीडिएटली रिलीज़ करेंगे। लेकिन उस वक्त फिर 3 बिलियन डॉलर रिलीज़ किया और 8 अब किया। तो मैं समझता हूँ सर, ये देखिए, हर चीज़ जो है वो पैसे के साथ ही बनती है। तो ये जितनी जल्दी हमें पैसे वापस करेंगे, हम उसको प्रोसेस करके, क्योंकि इस वक्त मसला ये हो चुका है कि एक तो आपको पता है रॉ मटीरियल बहुत महंगा हो गया है। जिस तरह कॉटन जो है उसकी इनिशियल प्राइस ही 13,700 निकली है। तो उसकी वजह से जब हम यार्न खरीदते हैं और उसका सेल टैक्स देते हैं,
تو پہلے جتنا 17% پہ بنتا تھا اس سے آلموسٹ اب 1.5 گنا زیادہ چلا جاتا ہے، تو یہ سارا گورنمنٹ کی کٹی میں جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں DLTL دیں اور ہمارے سیل ٹیکس ریفنڈ جتنی جلدی واپس کریں گے انشاءاللہ. اس بار $25 بلین دیں، اگلے سال ہم ان کو $27 بلین کے اوپر لے کے جائیں گے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.